और इंडिया का प्रोफेशनल तिरंगा जी इंडिया से बाहर अगर है तो कनाडा में ब्रैम्पटन में हमारे पास है। कई एसोसिएशन ग्रांट पे काम करती हैं, कई एसोसिएशन मल्टीकल्चरल होती हैं जो इवेंट्स करवाती हैं, तो नहीं होता है यार इस नेता का साथ देंगे तो हमें ग्रांट मिलेगी या कुछ कर। किस चीज़ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੀਆਰ ਨੂੰ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ? बच्चे को जरूरत है, जी। बच्चा हेल्प के लिए मांग रहा है, तो आपको जो फोन करता है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपको कोई भी फोन करता है, बुजुर्ग करता, अप्रोच इसलिए होती है कि वो आपको से मदद चाहता है। ਕੁਛ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ? पर जी। मुझे उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं मिली जो सबके लिए काम कर रही हो, पहली बात। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ सब देखो, ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ बिल्कुल। ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਪੀਆਰ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਫਾਗਨ ਜਨਮੋਤਸਵ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਟੈਂਪਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਗੂਰੀ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। जी हाँ, 27 फरवरी ਨੂੰ 5 बजे प्रोग्राम शुरू होएगा ਤੇ राती 9 बजे तक मंदिर में ये प्रोग्राम चलेगा। इसके अंदर हम पहले ध्वजारोहण करते हैं बाबा श्याम की, उसके बाद आरती होगी, भजन संध्या होगी, फूलों की होली खेली जाएगी। बहुत ही रंगारंग और भक्ति से पूर्ण प्रोग्राम होगा ये। तो मैं जितने भी श्रोतागण, जितने भी देखने वाले, सुनने वाले इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस बहुत सुंदर फागन महोत्सव में आए और हमारा मान बढ़ाएं और बाबा श्री खाटू श्याम जी के जो ब्लेसिंग्स हैं वो रिसीव करें। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ 2013 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਚ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सोशल वर्क, बेसिकली सोशल वर्क कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि संस्था के साथ किया जा सके। संस्था के साथ करना ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि वहां पे और लोग मिल जाते हैं आपको एक अकेले नहीं होते, फिर बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन जब मैं शुरू से आया तो हमें ये था कि हम एक अलग देश में आए हैं, जो कि इंडिया में होता क्या था, हमने कहीं पर भी गाड़ी से शीशा नीचे किया, बोतल फेंक दी, कुछ फेंक दिया, वहां मनवर्जी करते थे। या ये कहें कि हमारी सरकार कोशिश करती थी एजुकेट करने की, बट हम एजुकेट होना नहीं चाहते थे। हमारी माहौल जो था हमारा वो ऐसा ही था कि भी
डस्टबिन को प्रॉपर नहीं रखना, अगर सरकार डस्टबिन रखती थी वो चोरी हो जाते थे। तो यहाँ पर जब आए तो ये देश बहुत साफ सुथरा था, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं दिखती थी और लोगों ने भी हमें यही समझाया कि ये चीजें यहाँ मत करना, अच्छा नहीं लगता। अपने देश का नाम अगर खड़ा करना है तो अच्छे काम करो यहाँ पे। तो उस टाइम पे मुझे याद है, मैं पहली बार मैं जॉब पे जब जाता था, बस स्टॉप पे खड़े होते थे, तो एक पिकअप ट्रक से वो जो विद्या पढ़ाई का पौधा होता है, तो वो बहुत बड़ा पौधा था जो सड़क के बीच में गिर गया। तो सभी लोग देख रहे थे, कुछ चर्च के लोग थे वहां पे जो जीसस क्राइस्ट की पब्लिसिटी के लिए, धर्म की पब्लिसिटी के लिए वहां खड़े हुए थे। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार अब ये पिकअप ट्रक से इतना बड़ा ये जो पौधा गिर गया है, ये बाकी ट्रैफिक को तंग करेगा। तो मैंने उस पेड़ को, मतलब जो बहुत बड़ा पौधा था, कम से कम जो 6 फुट बाय 3 फुट का रहा होगा, इससे ज्यादा रहा होगा शायद, तो मैंने उसे खींच के सड़क से किनारे पे कर दिया। और जब मैंने वो किया तो जितने आसपास लोग खड़े थे उन सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो मुझे बड़ा अच्छा जी, लगा कि यार मैंने अच्छा काम किया और हर बंदा मुझे मतलब तालियां करके मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो मौका बड़ा ना जी। एनर्जाइजिंग मौका था, बड़ा मोटिवेशनल मौका था मेरे लिए। मैंने कहा यार दिस इज बड़ा अमेजिंग। खूबसूरत मौका सी। मतलब मेरे जी, लिए, मेरे को फील हुआ खुद बहुत अच्छा कि मैंने एक अच्छा काम किया है। मैंने खुद फील किया, जी, खुद को अप्रिशिएट किया कि मैंने अच्छा काम किया। तो ऐसे धीरे धीरे जी, अपनी जॉब पे भी मुझे बड़ी एप्रिसिएशंस मिली। वहां पर भी मैंने कोशिश की सोशल वर्क करूं। सीनियर्स लाइन में लगे रहते थे जहां मैं काम करता, तो वहां पे सीनियर्स के लिए बेनिफिट शुरू किए। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स आती थी या कुछ हैंडीकैप लोग आते थे, तो उनके लिए प्रायोरिटी लाइन शुरू की। तो उससे अपनी जो कंपनी थी उसमें तो मुझे बहुत ज्यादा तारीफ मिली ही मिली। और साथ में सोसाइटी ने भी मेरी बहुत तारीफ करनी शुरू की कि भी ये लड़का अच्छा है और अच्छा काम कर रहा है, एंड हम लोगों की इसने ऐसे ऐसे हेल्प की। तो बड़ी अच्छी बातें सुनने को आती थी जी। और बुराइयां भी होती हैं, कुछ ना कुछ करते भी होंगे, बट कुछ अच्छाइयां, मतलब ज्यादा जो लोगों की बात सुनी वो ये थी कि बहुत अच्छा कर रहा है और बिल्कुल ध्यान रखता है सबका, बड़ों का छोटों का। तो ही इज डूइंग गुड जॉब। मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मेल जी, आती थी लोगों की, कॉन्सर्ट तक गई वो मेल्स, तो बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे जब हम थोड़े सेट होने शुरू हुए, लाइक 3-4 साल लग जाते हैं सेट होने में, तो उसके बाद हमने मैंने मीडिया में रहा यहाँ काफी समय तक, प्रवासी मीडिया में जॉब की मैंने। तो वहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़े लोगों से मिलना जुलना हुआ, मीडिया के लोग मिले, कुछ पॉलिटिशियंस बहुत मिले, कुछ सोशल वर्कर बहुत मिले। तो उन सब से काफी कुछ सीखने को मिला। तो हमने सोचा कि यार अगर जी, सब लोग मिलकर एक निस्वार्थ रूप में, जैसे होता क्या है कि इंडिया में आप देखोगे अपना जैसे सिख धर्म है, और चाहे अगर मैं हिंदुओं में कहूँ, हमारा बनियों का जो तरीका है, बनिए दान धर्म में बहुत आगे रहते हैं। तो बट वहां पर तो सिर्फ पैसा दे देते थे, या दान धर्म करना है तो मंदिर में जाके कोई लंगर सेवा कर दी, कुछ कर दिया, ऐसे काम करते थे, है ना। तो मुझे लगा कि यार देखो मैं भी धार्मिक हूँ, और यहाँ जो मेरे आसपास जो माहौल है वो सारा धार्मिक लोगों का ज्यादा है, क्योंकि अपना सिख और हिंदू जी, भाईचारा यहाँ बहुत है, और गुजराती भी हैं तो वो भी धार्मिक है। तो मैंने कहा अगर ये सब धार्मिक है तो हम सब में एक कॉमन चीज है कि हम सब रिलीजियस हैं और ह्यूमैनिटी को मानते हैं। तो मैंने कहा हमें कोई ना कोई एक ऐसी एसोसिएशन बनानी चाहिए, या कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए जो निस्वार्थ सिर्फ अपनी जेबों से या अपनी मेहनत करके, अपना टाइम डिवोट करके लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हो। उसके अंदर चाहे किसी को, कोई न्यू कमर आया तो उसको ये जानना हो कि मुझे कहीं पर रहना है तो कौन सी जगह मेरे लिए ठीक है, कहाँ पर मैं जॉब कर सकता हूँ, या मेरी कोई जॉब में हेल्प कर दे, या मुझे लॉयर बनना है, मुझे मॉर्गेज का काम करना है, मुझे रियल एस्टेट का काम करना है, तो उसके बारे में उसे जो भी गाइडेंस हो, तो हमारे यहाँ पे लोग हों जो कि उनको गाइड कर दें कि आप ये काम ऐसे कर सकते हो। टीचर बनना चाहती है लेडी आती है, टीचर बनने का एक बड़ा लंबा सफर है कनाडा के अंदर, बट टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है। तो हमने सोचा कि अगर जी, हमें बड़े लोगों ने, क्योंकि जब मैं आया मुझे भी बड़े लोगों ने हेल्प की थी जी, और बड़ी हेल्प मिली मुझे, तभी मैं खड़ा हो पाया यहाँ पे। तो हमने कहा अगर हम यही हेल्प हर बंदे के लिए जी, शुरू कर दें, मतलब बहुत एसोसिएशन यहाँ पे ये काम करती है, तो ये नहीं कि मैंने पहली बार किया, बट मैं उन तक उतना रीच नहीं कर पा रहा था। जी, तो हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया कि हम करेंगे ऐसे, और हमने करना शुरू किया, जिसका नाम हमने माइका रखा, माई इंडियंस इन कनाडा एसोसिएशन। अब माइका का मतलब, जो शब्द जी, हमने चुना बड़ा अच्छा अपने आप मिल गया, शायद ऊपर वाले की कृपा थी। माइका एक तो पेके हो गया, जिसे हम पेके कहते हैं। दूसरा, जब मैं कह रहा हूँ जी, माई इंडियंस इन कनाडा एसोसिएशन, तो मैं कह रहा हूँ कि माई इंडियंस, मेरे भारतीय। जब आप इसी लाइन को बोलोगे तो वो आपके भारतीय हो गए। तो हम सबका ग्रुप है ये, हम सबकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जी, इसका ऑफिशियल मेंबर है या नहीं है, लेकिन जो सेवा का भाव रखता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर सेवा करें।
और उसी के बाद जब ये एसोसिएशन जी शुरू की तो हम पहले कल्चरल इवेंट्स किया करते थे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया करते थे। फिर कोविड का टाइम आ गया, तो सबसे ज्यादा जो हम निकल कर आए बाहर, जो हमारे सबसे ज्यादा मेरे को लगता है लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हमने कोविड में, हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत काम किया, हमारे मेंबर्स ने, चाहे कोई भी था, चाहे कोई आज बहुत सेटल्ड बिजनेसमैन है, चाहे कोई न्यू कमर था, चाहे कोई कैसा भी था, हमारा जो भी बिजनेसमैन है, एम्प्लॉई है, हर बंदे ने आगे बढ़कर बहुत काम किया। कनाडा में बहुत काम किया, इसके अलावा इंडिया में भी काम किया। जो इंडिया जी में फंस गए थे लोग, उन लोगों को हमने यहाँ से थोड़े थोड़े, मतलब थोड़े थोड़े ग्रोसरीज के पैसे भेज भेज के वहां पर किया, और उन्होंने गाड़ियों पर कैनेडियन फ्लैग लगाकर, और वहां पर दिल्ली के अंदर, स्पेसिफिकली दिल्ली में किया था, तो वहां पर उन्होंने ग्रोसरी डिलीवर की जहां जहां उनको जरूरत थी। जो उनके जानकार बिजनेसमैन थे, जिनकी दुकानें बंद थी, जिनको खाने की बहुत दिक्कत आ रही थी, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, हमने उन सबके महीने महीने की ग्रोसरीज भिजवानी शुरू की। सो वहां से हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाईलाइट जी हुए, हमारा काम बहुत अप्रिशिएट हुआ। और उसके बाद माई इंडियंस इन कनाडा सेशन में हम रूटीन में जो भी अच्छे काम हमें लगते हैं, जिसके अंदर हमें लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है या किसी को फायदा हो सकता है, हमारे अपने इंडो कैनेडियन को या कैनेडियन कम्युनिटी को, तो हम वो काम करते रहते हैं। ਜੀ ਸੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, बिल्कुल। ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੀਆਰ ਨੂੰ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ? सर, हम सारे इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करते हैं बाय हार्ट, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ स्टूडेंट पे फोकस्ड हैं। आज अगर जरूरत किसी वर्क परमिट जी वाले को किसी तरह की है, वो कहता है जी मेरी नौकरी चली गई है और मैं वर्क परमिट पे हूँ, बट मुझे इमीडिएट जॉब चाहिए, कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके लिए जॉब ढूंढे। अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी हाल ही में जी परसों पैनोरमा का इवेंट था, जहां पर मुझे एक हमारे पैनोरमा के एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो मिले, तो वो एक ट्राई कर रहे थे, एक लड़की साथ थी उनके, जो कि बहुत अच्छी फैमिली से थी, बड़ी छोटी प्यारी सी लड़की थी। वो दुरहम कॉलेज के अंदर है यहाँ पे। अब दुरहम कॉलेज में क्या हुआ, काफी जी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फी नहीं पे कर पा रहे अपनी, और उनको कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो फीस है, जो क्लासेस है, वो बच्चे ज्यादा लगा चुके हैं और उनकी पास ड्यू पेमेंट्स खड़ी हो गई हैं। उस लड़की जी के पास 3,000 कुछ डॉलर हैं, लेकिन उसे $12,000 चाहिए इमीडिएट पे करने के लिए। अब नॉर्मली कनाडा के अंदर हम लोग फाइनेंशियल हेल्प जी नहीं करते, क्योंकि हम वॉलंटियर हैं, हम लोग भी एक मिड सेगमेंट से, मीडियोकर फैमिली से आते हैं, तो $12,000 अपने आप में सुनने में बहुत बड़ी रकम हो जाती है हमारे लिए। तो हमने कहा कि यार ये तो कोई जी बड़ी एसोसिएशन दे सकती है। हमने कुछ बड़ी एसोसिएशंस को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी मसला हल नहीं हुआ, बट हमें एक बहुत अच्छी एसोसिएशन मिली, उसका नाम मुझे नहीं पता, जिसके अंदर हमें हमारे एमपीपी दीपक आनंद है, उन्होंने हेल्प की, और उन्होंने बताया कि ये एसोसिएशन ऐसी है कि फाइनेंशियल हेल्प करती है ऑन अ पे बैक बेसिस, कि आपको लोन देगी, अगर कोई गारंटर जी बीच में कैनेडियन है तो आपको लोन देगी और आप उसको टाइमली चुका दें, बट दे कैन फंड यू अप टू मैक्सिमम $6,000। तो चलो 12 में से 6,000 हो जी गया, लेकिन अब 6,000 कहाँ से लाएं, तो उसके लिए भी और कई ऑर्गेनाइजेशन को हमने रीच आउट किया कि ये बच्ची पार्ट टाइम जॉब कर रही है, जो भी 20 घंटे काम कर सकती है वो कर रही है, और इसका कहना है कि पूरे इस साल जी में दिसंबर से पहले वो किस्तों में पैसे आपको वापस कर सकती है, तो प्लीज आप इसको हमें आप ये लोन दे दो। उसके अंदर गारंटर वही थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। तो जी अब जी जी देखो, बच्चे को जरूरत है, जी बच्चा हेल्प के लिए मांग रहा है, तो आपको जो फोन करता है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपको कोई भी फोन करता है, बुजुर्ग करता है, बच्चा, उसकी एक अप्रोच इसलिए होती है कि वो आपको से मदद चाहता है। वो जी आपको इसलिए फोन नहीं कर रहा कि ते- आपसे ये नहीं पूछता कि जी आप मेरे को हेल्प चाहिए, आप स्टूडेंट की करते हो या वर्क परमिट की करते हो या पीआर कार्ड होल्डर की करते हो, वो कहता है मुझे हेल्प चाहिए। तो जब कोई कहता है मुझे हेल्प चाहिए, तो उसकी दिक्कत हमारी दिक्कत हो जानी चाहिए, अगर हम रियल सोशल वर्कर हैं तो। अब वो भगवान के हाथ जी में कि हम उसकी ਤੇ कितनी ਅਸ਼ਵਨੀ मदद ਜੀ, कर सकते हैं या ਇਹ नहीं कर सकते। ਕੁਛ 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 ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ बिल्कुल। ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ? कहते जी, अपनी अपनी सोच होती है ना, तो
सोच ये थी कि मीडिया में था, रिलेशन बहुत थे, हर तरह के रिलेशन थे, आज भी हैं। तो कर तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन रही थी, पर जी मुझे उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं मिली जो सबके लिए काम कर रही हो। पहली बात, कर भी रही होंगी तो मुझे लगा वहां पे लोग इलीट बन के बैठे हुए हैं। आज शायद जब उन्होंने खोली होगी तो कर रहे होंगे। अब शायद वो स्टेबल से हो गए, अब वो ज्यादा चेक करते हैं किसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, फॉर्म भरो जी, ये करो जी। मतलब काफी फॉर्मेलिटीज हैं उसके अंदर, जो कि जरूरी भी है एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मेरे लिए जी हेल्प करना होता है कि किसी ने मुझसे कहा और मैं उसके काम को निकल पड़ा। उसके लिए मुझे किसी फॉर्म जी भरवाने की जरूरत नहीं है, या किसी उसके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। मतलब मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन। मुझे किसी ने कहा कि जी, अब जैसे जी लड़की थी, माइका के नाम पे कोई फॉर्म नहीं भरा गया, माइका का नाम है ही नहीं इसके अंदर। एज अ वॉलंटियर आई एम डूइंग दिस। जी अभी तक तो माइका के मेंबर्स को भी नहीं पता, जी क्योंकि जी मुझे ये पता है कि मैं अगर माइका ग्रुप से भी फंड क्रिएट करूंगा, क्योंकि हम फंड नहीं क्रिएट करते माइका में। माइका में जब भी जरूरत होती है हम जी काम करते हैं, तब पैसे इकट्ठे करते हैं। माइका का फंड रेज करते ही नहीं, क्योंकि जिस दिन हमने माइका का फंड रेज किया, पता नहीं रब किस दिन साडी नीयत खराब कर दे या लोगों की नीयत खराब कर दे जी। हर बंदा फिर कहे जी मैं डायरेक्टर बनागा, मैं कमाल है ये अश्विनी जी, बनागा। तो कमाल है, वी डोंट गो इनटू दैट थिंग। सो कमाल हम है। फंड नहीं खटा। अब तो जब जरूरत आई, अब जैसे जरूरत आई है लड़की की, मान लो 6,000 हो गया है। अब आज या कल में मैं ग्रुप में डाल सकता हूं कि हमें 6,000 के शॉर्ट चल रहे हैं, मैं इस लड़की की मदद कर रहा हूं, कि क्या आप में जी से कोई विलिंग है। हो सकता है उसमें से 500 करके या 2-3 हजार वहां से इकट्ठा हो जाए। और हो सकता है कि कोई जी एक ही जी बड़ी जी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हमने बात की, वो कहे कि नहीं जी आप छोड़ो, इधर उधर से लो ना, 12,000 हम देते हैं, लड़की हमें ही दे देगी। तो मिलके एक दूसरे जी का जी सहारा बन के। अब लड़की इतनी एसोसिएशन को अप्रोच नहीं कर सकती, उसने तो एक आदमी को अप्रोच किया। अब उस एक आदमी ने मुझे ਜੀ अप्रोच किया या ਤੇ और ਅਸ਼ਵਨੀ जगह भी ਜੀ अप्रोच ਮਾਫ किया। ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ सर ਵੱਡੀ देखो, ਇਹ ਹੈ? मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो विजिबल नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जी कोई छोटी है, किसी को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मैं जब से सोशल वर्क कर रहा हूं, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट पे मैं कभी गया नहीं, ना किसी बच्चे ने मुझे कॉल की। बट जब मैं मीडिया में था, मुझे याद है, मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल्स आया करती थी लड़कियों की, कि हमें अब्यूज किया जा रहा है। तो मैं कहता था बेटे आके मिलो, बात करो, हमें बताओ। तो वो फोन काट देते थे बच्चे। जी बट वो परेशान थे बच्चे, और उनके लिए कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें ढककर, क्योंकि देखो हम अगर आदमी है तो ऑब्वियस है लड़की हमसे उतना खुल के बात नहीं कर सकती। ठीक है। तो जी मैं चाहता जी हूं कि कहीं ना कहीं वो आवाज, हमारे ही बच्चे हैं सारे, उन बच्चियों की आवाज कहीं दब रही है, कि उन बच्चों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो लेडीज तैयार करें, फीमेल तैयार करें, और उनको कोई ना कोई ऐसी छत दें कि जहां पर उन गर्ल्स के साथ अब्यूज ना हो। बच्चे आते हैं, छोटे आते हैं, जी और उनके साथ आप जॉब देकर या किसी ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ उनको ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, पैसे की ਬੜਾ जरूरत ਬੜਾ है, ਬਹੁਤ जॉब की ਜ਼ਿਆਦਾ जरूरत ਚਰਚਾ है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। या बिल्कुल विजुअल तो देखो है, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई लेडीज जी की टीम होती, मैं उनको डेफिनेटली गाइड करता कि आप बनाओ। अब जैसे अलग प्रॉब्लम ये है कि अब लड़कियां हैं यहाँ पे 18 साल, 20 साल, 22 साल की, उनके पेरेंट्स नहीं है, और इवन वो पेरेंट्स से भी नहीं पूछ सकती कोई तकलीफ आए तो। सिर्फ अब्यूज की नहीं, और भी तकलीफें होती हैं। जी काइंड ऑफ गाइडेंस चाहिए, एजुकेशन गाइडेंस चाहिए, काउंसलर होते हैं, बट उनको उनकी बातें नहीं समझ में आती है। उनको कोई और फ्रेंडली लेडी चाहिए, या कोई फीमेल दोस्त चाहिए जो उन्हें सारा कुछ बता सके। जी जी तो मुझे बिल्कुल लगता है ऐसी वुमेन जी ऑर्गेनाइजेशन का होना बड़ा जरूरी है, जो इन बच्चों की, इन लड़की बच्चों की खास तौर पे समस्याओं को समझे, उनका सपोर्ट करे, उनको गाइड करे, जी और उनको एक राइट पैथ बताए कि ये कंट्री वुमेन कंट्री है, एंड यू आर इनफ स्ट्रांग दैट यू थिंक, एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जी तो जी उनको राइट्स बताना, उन्हें कैसे काम करना चाहिए दबाव में नहीं, वो बताने जरूरी है, एजुकेट करने जरूरी है। हमारे जो बच्चे हैं इंडिया से आते हैं, बहुत सीधे हैं इन मामलों में, उन्हें अपने जी रूल्स नहीं पता, रेगुलेशन नहीं पता। आज भी हम कैनेडियन है, हमें अपने जी राइट्स नहीं अश्विनी जी पता बिल्कुल प्रॉपरली। जी 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 सो ये बिल्कुल चीजें अश्विनी जी, अभी बड़ा कमाल हमारी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। कम्युनिटी को ਜਲਦੀ सिखाना जरूरी है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, सर ਪੁਰਾਣੇ मैं ਸਮੇਂ तो ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ डेफिनेटली ਹੁਣ नहीं ਤੱਕ करांगा। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
सर पहली गल तो मैं जवाब दूंगा कि स्टूडेंट वुमेन विंग जी तो सिर्फ और सिर्फ वुमेन शुरू करेंगी। वो शायद भी माइका का पार्ट नहीं होगा, बट एक सजेशन है, कुछ ऐसी वुमेन्स मिलती है, मैं कई बार बात करता हूँ, तो माइट बी देयर आर जी सम पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट सून। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि जी आज, दोबारा एक बार रिपीट कर दे प्लीज। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ सर ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਨ टच ਹੁੰਦੇ ਆ स्टूडेंट्स देखिए, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? दोनों तरफ इश्यूज हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इश्यूज हैं और बच्चों की तरफ से भी इश्यूज हैं। एक बच्चा इंडिया से चला, उसके पेरेंट्स ने सब कुछ लोन पे लिया, बेच दिया, या कुछ अमीर परिवार के बच्चे भी थे, पर ज्यादातर वो थे जो मीडियोकर होते हैं, जिनका सपना होता है कि बच्चों को बाहर भेजेंगे, कुछ कमाएंगे और अच्छा नाम रोशन करेंगे, और अच्छे बच्चे हैं। जी अब वो आके यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि लाखों बच्चे वापस जा रहे हैं जिनको अब कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी जगह शायद जी सही है कि वो करेक्शन करना चाहती है। कैनेडियन बच्चे जो सिटीजन है, उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाना चाह रही है कि भाई इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तो काफी बच्चों के साथ गलत भी हो रहा है, अनजेन्युइन भी हो रहा है। और जहां पर कनाडा की बात करें, तो कनाडा अपने आप को करेक्शन बिल्कुल करेक्ट करना चाह रही है कि हम, क्योंकि ब्यूटी कनाडा की क्या है, कनाडा की ब्यूटी ये है कि जब आप वहां से आते हो इंडिया से, तो साल 1.5 साल आपका परिवार मेहनत करता है, हस्बैंड वाइफ, और साल 1.5 साल 2 साल के जी अंदर आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से मकान बना लेते हो। लेकिन अगर आप वो मकान नहीं बना पा रहे हो, जी अगर आप वो गाड़ी नहीं ले पा रहे हो 2-3 सालों में, 4 सालों में, तो इट मीन्स कनाडा इज नॉट अ ब्यूटीफुल कंट्री। जब मैं आया था, मैंने यहाँ पे आके 1.5 से 2 साल में मकान जी बना लिया था। तो मेरे लिए तो वही ब्यूटी है कनाडा की, जी जो इंडिया में बनाने में हमें सालों साल जी लग जाते हैं, शायद जिंदगी भर मकान बन भी नहीं पाते लोगों के। तो कनाडा अपनी जगह सही है, वो जी करेक्शन कर रहा जी है। बच्चे अपनी जगह सही है कि वो इस फेस में फंस गए हैं, वो एक पूरी जनरेशन इस फेस में फंस गई है कि ना तो जाने लायक हैं वो, और ना रुकने लायक हैं वो। और अगर कल को ह्यूमैनिटेरियन में जाते हैं, वहां तो ऐसी बहुत रेयर चांसेस हैं, मतलब कैनेडियन बनने के या पीआर जी मिलने के। तो उसका जवाब, मैं सच बताऊं, मेरे पास जी भी नहीं है, बट मुझे दुख बहुत है इस चीज का कि हमारे हिंदुस्तानी बच्चे, इतने सारे बच्चे और बहुत ही लायक बच्चे हैं, अगर वो कनाडा पहुंचे हैं तो किसी हिम्मत पे, किसी दम पर पहुंचे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जी जो हो, भगवान सबके साथ, गुरुदेव हो, भगवान हो, जो भी है, शक्ति हमारी जो है, सबके साथ अच्छा करे और सबको सुख दे, और सबको इस मौके पे थोड़ा सा आपस में मिलजुल के जी काम करना और एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ने का मौका दे। ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ बिल्कुल ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ सर। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ सर देखो, जद ਅਹ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ जब ਇੱਥੇ, ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ हाँ जी ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ? सर देखो, जब कोई बुरा वक्त आता है ना, उस समय में कोई रिलीजन नहीं होता, उस समय ह्यूमैनिटी जी होती है। सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है? ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी के बाद सारे रिलीजन बनाए हैं, सबने आपको लिमिट्स बनाई हैं, सबने सब कुछ किया है। सबसे बड़ा, जिसको हम सनातन धर्म भी कहते हैं जी बेसिकली, अगर हिंदी में कहें, तो अगर हम इंग्लिश की बात करें, उसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, कि भी आप एक इंसान हो और आपको दूसरे इंसान को भी उतनी इज्जत देनी है जितनी आप अपने राइट्स को देते हो। तो जब कोई जी विपदा आती है, वो कोई गोरा, कोई काला, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं होता, वो सारे एक होते हैं, सबकी सेम प्रॉब्लम है। अब मैं ये कहूं कि मैं जी इंडो कैनेडियन हूं और मैं सिर्फ माइका को रिप्रेजेंट करूं, मैं सिर्फ हिंदू बच्चों को संभालूंगा, नहीं। मेरे पास गोरा आएगा, काला आएगा, जिसकी भी जी प्रॉब्लम आएगी, वो सारे हमारे लिए सेम है, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी सेम है। अभी जब हमने इस बिटिया के बारे में बात की, जी जो मैं बता रहा था अभी आपको, तो उस समय हमने हमारे एमपीपी दीपक आनंद मिसागा से उनसे बात की, उन्होंने दुरहम कॉलेज बात की, तो वो दुरहम कॉलेज वाले कहते जी, वी डोंट हैव ओनली वन स्टूडेंट, कहते वी हैव टू मैनी स्टूडेंट्स, जी वी कैन नॉट गिव यू एनी फ्लेक्सिबिलिटी कि हम लोन दे दें और किस्तों पे पैसा लें बच्चों से। कहते ओनली 3 months लेफ्ट कोर्स के लिए, पास ड्यू चल रहा है और आगे के पैसे नहीं है। अब देखो, संस्थाओं ने भी काम तो पैसे से करना है, बट मोर ओवर बात ये कि एक बच्चा नहीं है, कहते हम किसी 1 या 2 या 5 बच्चों को एसोसिएशन के कहने पे सपोर्ट कर देंगे, जी तो अगले दिन बाकी बच्चे टिकटॉक पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, दे कैन डू व्हाटएवर दे कैन डू, राइट। सो जी सॉल्यूशन जी सब जी बच्चों जी के लिए होना चाहिए, और सॉल्यूशन जब मिले तो सभी बच्चों को मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ। मुझे अब पता नहीं, इस केस में जो बढ़ रहे हैं हम, गवर्नमेंट सब बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन लाएगी या नहीं ला पाएगी,
बढ़िया मैं ये कहूंगा जी बच्चों की इस समय जो मैं अश्विनी देख जी रहा हूँ, एक जिस तरीके से मुझे एक बच्चे से पता लगा, इट्स नॉट गुड। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ नहीं ਦੇ सर, ਵਿੱਚ मैंने तो ये देखा है कि जब प्रॉब्लम वध जाती है ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਤਬ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸਹੀ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ ਚ ਲੋਕ ਮੈਂ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਲਈ ਕੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜੀ ਵਧਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾइलेज मिलेगी, देन दे कम आउट। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये चीज होती जी है कि अब आपने एक उपराला शुरू किया, कहते हैं ना, जब आप काम शुरू करते हो लोग साथ नहीं होते, तब एक या दो खास लोग साथ होते हैं, लेकिन जब वो आसमान छूने लगता है तो हजारों लोग साथ आ जाते हैं। तो ऐसे ही ट्रबल भी एक ऐसी चीज है, जब जी दिक्कत आती है तो लोग साथ नहीं होते, एक दो आपके साथ अच्छे लोग होंगे, लेकिन जब वो दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी कि जी उसको पब्लिश किया जा सके, फिर सभी आ जाएंगे, क्योंकि सबकी टीआरपी बढ़ती है। या ये कह लीजिए कि एक बड़ा उसका फायदा भी बड़ा होता है कई बार, कि भाई जब इतनी जगह गई है, इतनी जी बात हुई है, तो उसको सोल्यूशन निकालने आसान हो जाते हैं। तो पर मैं ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम बड़ी होने जी देनी ही नहीं चाहिए, सोल्यूशन पहले ही निकालने चाहिए, ताकि कम्युनिटी के अंदर डर ना हो। जी अब जो बच्चे यहाँ पर 10 लाख बच्चे हैं, अगर जी पहले से कोई सोल्यूशन बनाया गया होता, कोई चीज की गई होती, तो शायद उनके पेरेंट्स को इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी खबर नहीं फैलती, धीरे धीरे कुछ चीजें ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ठीक होने की कोशिश ਪੇਰੈਂਟਸ करती ਦੀ ਗੱਲ गवर्नमेंट। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਕ ਹੋਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ सर, नहीं ਭੇਜਿਆ समझ ਛੋਟੀ रहे हो। ਉਮਰ ਦੇ नहीं सर, नहीं, नहीं सही। एक्चुअली होता क्या है, इल्जाम बच्चों पे आ जाता है। मैं जो समझता हूँ, ਜੀ माँ प्यो, कुड़ी है, मुंडा है, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ठीक है। या फिर जो समझते हैं वो कहते हैं समझ भी गए तो करें क्या, पैसे तो पैसे ही हैं। अब उनका जिंदगी जी भर की जमा पूंजी जो खत्म हो गई है, उसके लिए वो क्या करें। बच्चा भी इंपॉर्टेंट है। अब वो बच्चे के ऊपर भी यहाँ जी प्रेशर है कि मेरे पेरेंट्स ने लाखों रुपया लगा के मुझे जी यहाँ भेजा है, और मैं उनको कुछ दे नहीं सका, और मेरा तो फ्यूचर ही खत्म हो गया। तो सर जी मतलब ये बड़ा इमोशनल, मेरे ख्याल से बड़े इमोशनल टॉपिक्स हैं, इसके अंदर जितने लोग हैं उतनी कहानियां होंगी, उतने दर्द होंगे। तो जी आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल नॉट अ अश्विनी जी गुड कोई टू, शक नहीं हर घर की अपनी कहानी होती है सर, है ना। ਤੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ जो एनपीओ होती है बेसिकली तो वो नॉन पॉलिटिकली होती है, वो सेवा के लिए बनी है, वो वोट के लिए तो बनी नहीं है। जी बट वो ठीक है कि हमारे हमारे नेता, हमारे मिनिस्टर एक नॉर्मल प्रैक्टिस है वो दुनिया के अंदर, उन्हें पता है कि ग्रुप पे हजारों लोगों का, कई इसको अट्रैक्ट करती है उनको कि मुझे यहाँ से वोटें मिलेंगी, तो वो उनकी भावनाओं को कोई जी कंजर्वेटिव में बदल लेता है, कोई लिबरल में बदल लेता है, उसको यूज तो किया जाता है। और जो लोग हैं उनको भी लगता है कि हमारी एसोसिएशन है, कल को हम लिबरल पार्टी आने वाली है, लिबरल से जुड़ेंगे तो हमारे को शायद कुछ ज्यादा फायदा होगा। मतलब हर तरह के फायदे जी जी होते हैं। बिल्कुल ਹੁੰਦਾ है हर एक ਨੂੰ कई बार ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ कई ਹੈ ਜੀ ਇਹ कई एसोसिएशन ग्रांट पे काम करती हैं, कई एसोसिएशन मल्टीकल्चरल होती हैं जो इवेंट्स करवाती हैं, तो उन्हें ये होता है कि यार इस नेता का साथ देंगे तो हमें ग्रांट मिलेगी या कुछ कर। हमने भी ग्रांट ली थी एक बार माइका में, शुरू में ली थी जब हमने मल्टीकल्चरल इवेंट किया, फिर हमें लगा कि नहीं, हमें ग्रांट पे नहीं जी काम करना, हम अपने पैसों से ही काम करेंगे। सो मैं, ग्रांट वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, क्योंकि इतने बड़े उपराले करना इट्स नॉट इजी विदाउट ग्रांट। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੱਕ सर जो मैंने सीखा है दोनों बातें हैं इसमें। डेफिनेटली जैसे अपना जी कोई भी पंजाबी है या अपना कोई भी हिंदू है या जो भी अपने अभी तक एमपीपी या एमपी बने हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हमारी कम्युनिटी के मुद्दों को आगे लेकर जाएं, पार्लियामेंट में लेकर जाएं। पर दूसरी तरफ ये भी चीज आती है कि जब जी आप कोई भी किसी पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हो, तो आपको पार्टी की पॉलिसीज में रह के ही काम करना होता है।
आप अपनी एक अलग आवाज नहीं उठा सकते। आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस चीज को जी पेश कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको आपका जो बॉस है, जो आपका सीनियर है वहां पॉलिटिशियन, वो क्या सलाह देता है वो मैटर करती है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक नेता खड़ा हुआ और आपने कुछ भी करा लिया, नहीं। आपके नेता को कैनेडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, बट ये जरूर होगा कि आपका उसके साथ कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। आप अपनी बात जी अपने चुने हुए नेता से कह सकते हो इजीली। शायद गोरे को आपकी इतनी बात समझ में ना आए, बिकॉज उसे आपका कल्चर नहीं पता, आपकी इमोशंस नहीं पता, आपकी फैमिलीज के बारे में इतना नहीं पता होता, क्योंकि उनका कल्चर इंटायरली डिफरेंट है। तो लेकिन जब आपका अपना एक पंजाबी वहां खड़ा है, जी तो आपकी वो हर दर्द को, हर बात को समझता है, और उस बात को पुट अप भी करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आगे से उसको क्या जवाब आता है, क्या राय मिलती है, और ये किस तरह से वो पुट अप करता है। पर आप देखिए, हमारे यहाँ पे बड़े ही अच्छे अच्छे इस समय अमरजोत संधू जी हैं, हमारे यहाँ पे दीपक आनंद हैं, प्रमीश सरकारिया है, रूबी सहोता है, सोनिया सिद्धू जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जी मतलब जी मैं डे नाइट अश्विनी काम जी, करना। अख, अ- जी ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ PR ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਆਧੇ ਮਿੰਟ ਚ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ किस तरह दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, कूड़ा कितने सटते हैं। जो भी कैनेडियन करते हैं, किसी कैनेडियन से पूछो कि सर हम यहाँ पे नए आए हैं, वो आपको खुद ही गाइड कर देगा कि बेटा आए हो ना, तो दरवाजा ऐसे बंद करते हैं, पीछे से कोई आ रहा है देखते हैं, नहीं देखोगे तो आप जी बुरे बनोगे और अपना नाम भी खराब करोगे। दूसरी बात है, कहीं पे कूड़ा करकट नहीं फेंकना, जी बिना बात के कंधों पे हाथ रख के शोर नहीं मचाना मार्केट के अंदर घूमते हुए। बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आपका व्यवहार, आपके बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे आके लर्न करनी चाहिए। आई थिंक जी इतना ही अश्विनी काफी जी, है जी। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਕਸੈਸ ਮਾਈਕਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਖਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈ इंडियंस इन कैनेडा एसोसिएशन खोली सी? सर देखो, सबसे बड़ा फक्र तो ये होता है कि अभी जैसे पैट्रिक ब्राउन जी ने मुझे बकायदा इशारा, मतलब मेरी तरफ उंगली करके और मेरे को खड़ा किया, मेरे को रिकग्निशन दिया उन्होंने कि हमने रैकेट तोड़ा है। हमने इतना बड़ा तिरंगा ब्रैम्पटन में डिस्प्ले कर जिसके अंदर हमने कनाडा और इंडिया दोनों के फ्लैग डिस्प्ले किए थे, और वो दोनों का साइज जो था 40 बाय 60 फुट का साइज था। और इंडिया का प्रोफेशनल तिरंगा जी इंडिया से बाहर अगर है तो कनाडा में ब्रैम्पटन में हमारे पास है। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात थी। जी उसके बाद आने वाले सालों में हमने उसको सागा में भी डिस्प्ले किया, हमने उसको पेनरोमा में भी डिस्प्ले किया, और ब्रैम्पटन में तो करते ही हैं। तो एक इतना बड़ा तिरंगा होना जी अपने आप में दिल को एक बड़ी खुशी मिलती है कि हमने एक रैकेट तोड़ा है कनाडा के, जिसके अंदर हमारा ब्रैम्पटन मेयर हमें कह रहा है कि दिस आर रैकेट। तो इट फील्स गुड। बाकी जी एप्रिसिएशन तो सर छोटे छोटे कामों में बहुत मिलती रहती है। भाइयों का प्यार मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। कहते हैं ना, आप किसी जिसके हाथ में लाठी है उसको रास्ता पार करा दो, तो उसकी दुआएं भी बहुत बड़ी होती है। और किसी को जी आप, जैसे मैंने कहा, वो पेड़ मैंने खींचा तो मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो कोई भी काम हो, अच्छा काम करो सर। अच्छा काम से आपको मोटिवेशन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलती है, चार लोग आपके लिए अच्छी बात करते हैं, तो मैं ऐसे ही काम जी करने चाहिए। ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला। और मैं सबसे यही विनती करूंगा कि आप लोग कनाडा आए। बहुत सुंदर देश है, बहुत प्यारा देश है। कनाडा का थोड़ा सा प्रोसेस को ध्यान रखें, बेसिक्स को ध्यान रखें। यहाँ पर आप अपने बड़ों की इज्जत आदर मान करें, और यहाँ पर हर आदमी आपको हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपके जी एम्प्लॉय में कोई है। कहीं पर भी आप जाओगे, कोई आपको ना नहीं करेगा हेल्प करने के लिए। बहुत अच्छा कंट्री है। 80% जी जी आपको हेल्प मिलेगी, और आपको तरक्की के रास्ते भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।